Hi friends, this is Vasundhara from Capstone IAS Learning. This video is going to cover Representation of the People Act 1950 and 1951. In this video, we're going to discuss the introduction or the history of the acts, significance or importance of the acts, key provisions of RPA 1950 and RPA 1951, Section 8 of RPA 1951 and Section 123 of RPA 1951, along with the case law, that is Abhiram Singh versus C.D. Comichin, and the criticism of this landmark judgment of 2017. Let's begin with the introduction. Basically, free and fair elections is the sine qua non of democracy. Sine qua non means the essential, utmost necessary condition कि इसके बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाता. Articles 324 to 329 of Part 15 of the Constitution of India, they basically tell कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो चाहते थे कि पार्लियामेंट के पास पावर्स हो कि वो लॉज बनाए इस इलेक्टोरल प्रोसेस को पूरा तरह रेगुलेट करने के लिए. बिकॉज कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन वोट करेगा, कैसे कैसे इलेक्शंस होंगे, कैसे पोलिंग बूथ्स बनेंगे, इन सब के लिए प्रोसेसेस रिक्वायर्ड थे. दैट इज वाई द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया Wide Article 324 of the Constitution was set up. It is a constitutional body. Also, it is the watchdog of the election process. कि वो पूरी तरह से ध्यान रखते हैं कि exactly क्या हो रहा है, right from the पंचायत elections to the MP elections of the center. तो जो दोनों आपके Representation of the People Act 1950 और 51 है, वो दोनों ही पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं. और आपने इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि 50 वाला आया था तो उसमें अमेंडमेंट होके 51 आया है. ऐसा कुछ भी नहीं है. बोथ आर सेपरेट. So there are two acts. One is 50 and one is 51. And they are not related to each other in terms of the provisions that they contain. Alright, so two different acts are there. एक दूसरे की amendment नहीं है. दोनों different domains को deal करते हैं. Alright, let's move to the significance or the importance of the acts. कि इन acts को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी हमारे constitution makers को. Direct democracy. India is a country which has direct elections. Indirect भी है, but direct is the majority portion. तो इसलिए हमें democratic अपने जो processes हैं उनको participatory और transparent बनाने के लिए अपने जो आवाम है उसको encourage और empower करना पड़ता है ताकि वो एक appropriate candidate choose कर पाए. Of the people, by the people, for the people. तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो खुद सेलेक्ट करते हैं लोग, इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस को गवर्न करना और ट्रांसपेरेंटली होने देना. इक्वल रिप्रेजेंटेशन. RPA 1950 बेसिकली हैज़ डीलिमिटेशन. तो डीलिमिटेशन में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसीज और उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे गवर्न किया जाता है कि हर एरिया में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्टर्स हों ताकि हर एरिया को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके पार्लियामेंट में. फेडरलिज्म. फेडरल पॉलिटिक्स है हमारे कंट्री की, फेडरल स्ट्रक्चर है थोड़ा सा, तो इसीलिए हर एरिया को, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिले पार्लियामेंट में, उसके लिए भी ये एक्ट जरूरी है. Decriminalization of Indian politics, because there's a huge nexus. तो RPA 1951 जो है वो कोशिश करता है कि decriminalize करे अपने processes के थ्रू. Accountability and transparency. Expenditure monitoring mechanisms हैं, उसमें mentioned है RPA 1951 में. तो उससे basically जो expenditures हैं और incomes हैं उन्हें control किया जा सकता है, so that the process remains accountable and transparent for the general population to check. तो checks and balances जो हैं बहुत ज़रूरी है. Clean election. RPA 1951 corrupt practices like booth capturing, bribery etc. को दूर रखने की कोशिश करता है पूरे इलेक्शन प्रोसेस से ताकि क्लीनली इलेक्शंस हेल्ड किए जा सकें. Legible political funding, of course. रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वही पॉलिटिकल फंडिंग और इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह रिसीव कर सकती हैं, सो दैट
the whole country can see where exactly the money is going and where it is being spent. Alright, let's move to the key provisions of RPA 1950. इसमें डिलिमिटेशन के बारे में बात की है, which I've explained कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन बेसिस पे एरियाज को बांटा जाता है, और उसमें 1971 के आपके और 2001 के सेंसस के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करके पॉपुलेशन इक्वलाइज करके सीट्स दी जाती हैं जिन पे इलेक्शंस कंडक्ट होंगे. इट लेज डाउन द प्रोसीजर्स फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स कि कैसे कैसे सीट्स एलोकेट होंगी, अगेन कनेक्टेड टू डिलिमिटेशन. Provides for the House of the People and Legislative Assemblies and Legislative Councils of States. तो आपके MP, MLA और MLCs के जो इलेक्शंस हैं उसकी प्रोविजंस इसमें है. प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. इलेक्टोरल रोल बेसिकली क्या होता है, जिसमें सब इलेक्टोरल इलेक्टर्स के नाम होते हैं. वो पूरी लिस्ट जो बनती हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन वोट करने के लिए एलिजिबल है, उसे इलेक्टोरल रोल कहते हैं. लेज प्रोसीजर फॉर एंड द मैनर ऑफ फिलिंग सीट्स कि कैसे सीट्स फिल होंगी. अगर कोई कैजुअल वेकेंसी हुई है सीट में, किसी कैंडिडेट की डेथ हो गई है या कोई कैंडिडेट ऑफिस में नहीं आ पा रहा है फॉर सम रीजन, तो वो सीट्स कैसे फिल की जाएंगी. लेज डाउन द क्वालिफिकेशन फॉर वोटर्स. इसको अडल्ट सफरेज भी कहते हैं. ये आर्टिकल 326 में आपके मेंशन्ड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि एनीबडी हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया and above 18 years of age and otherwise not disqualified by any other law that is prevalent in the country or some other reason like unsoundness of mind etc., तो वो एक qualified voter है. Qualified elector है. Now there is difference between elector and voter. जो आपका elector होता है उसका सिर्फ लिस्ट में नाम होता है, तब तक वो elector है जब तक उसका लिस्ट में नाम है. वोटर वो है जो वोट करके आ गया, जो इलेक्शन डे पे वोट डाल के आया, दैट इज द वोटर. ऑलराइट. आरपीए 1951 में 4 स्केड्यूल्स हैं. देयर वर इनिशियली 7 स्केड्यूल्स, बट जो आपका 5th, 6th और 7th स्केड्यूल है वो रिपील कर दिए गए हैं. सो व्हाट इज रिमेनिंग इज, फर्स्ट स्केड्यूल में देयर इज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल विच इज द लोकसभा. तो लोकसभा इज स्केड्यूल 1. सेकेंड स्केड्यूल में है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सो जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं. थर्ड स्केड्यूल इज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, सो एमएलसी के जो इलेक्शंस होते हैं उनकी सीट्स कैसे एलोकेटेड हैं वो है. फोर्थ स्केड्यूल इज लोकल अथॉरिटीज फॉर पर्पसेस ऑफ इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. ओके, नेक्स्ट इज आरपीए 1951. इसके की प्रोविजंस क्या है. It regulates the actual conduct of elections and by-elections कि अब असली में इलेक्शन हो रहा है या बाई इलेक्शन हो रहा है तो उसके प्रोसेसेस कैसे कंडक्ट किए जाएंगे, ये उस बारे में बात करता है. इट प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस. तो जैसे जो आपका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है वो इसमें एंटेल्ड है. देन यू हैव रिटर्निंग ऑफिसर जो पोलिंग बूथ्स पे होते हैं. तो ये सारे जो अलग अलग पोजीशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है कि किसकी ड्यूटी लगेगी इलेक्शंस में, कौन कहाँ से कैसे जाएगा, कैसे जो आपके बैलेट्स हैं वो ट्रांसफर होंगे. ऑल दीज थिंग्स आर डेल्ट हियर. इट डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. सो अनरजिस्टर्ड पार्टीज कैन नॉट contest elections. Also parties can be state level or national level. It specifies the qualifications and disqualifications for membership of the houses. So this is very very important. We'll discuss this in detail. It provides provisions to curb corrupt practices. This also will come in later. तो कोई भी corrupt practices जैसे booth capturing हो गया या bribery हो गई या कोई और offenses हैं, तो all these things are to be dealt with in a very strict manner and there are provisions for this separately. It lays down the procedure for settling doubts and disputes arising out of elections. So basically, particularly for election-based issues or cases, you can't move the court directly unless it is an appeal. So first you have to go to the Election Commission of India, take your plea, your application, whatever they decide against that decision you can move the court. Otherwise you can't go directly.
ऑल राइट टू वोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 326 जो आपका आर्टिकल है जो अडल्ट सफरेज को डील करता है, वो राइट टू वोट आपको गारंटी करता है। Also, Section 62 of the RPA 1951 also does that if you're on the electoral roll, you are entitled to vote. It is your right. You can do that. And one person can vote at one constituency only. आपका जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में नाम है, आप सिर्फ वहीं वोट कर सकते हैं, और एक इलेक्शंस में आप सिर्फ एक ही बार वोट कर सकते हैं. सो यू कांट डू वोटिंग अगेन एंड अगेन. सो बेसिकली इसीलिए वो आपके फिंगर पे मार्कर लगाते हैं, सो दैट यू कांट गो वोट अगेन. If a person is confined in a prison, so if you're convicted under sentence or under transportation, if you're there, तो eligible for voting नहीं हुआ, not eligible for voting. But preventive custody में अगर कोई है तो that person can vote. तो 2014 में क्या हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि अगर कोई प्रिवेंटिव कस्टडी में है उसका राइट टू वोट है, बट अगर कोई अंडर ट्रायल या कॉन्विक्ट है तो उसका राइट टू वोट नहीं है. बट एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई सर्व कर रहा है लेस देन 2 years ऑफ सेंटेंस तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है प्रिजन से, जीत जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो प्रिजन में कन्विक्टेड आदमी है वो वोट नहीं डाल सकता, बट इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकता है. सो दिस बिकेम अ ह्यूज पॉइंट ऑफ कंटेंशन. विल डिस्कस वेयर इट कम्स इन लेटर. नोटा ऑप्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो 2013 में इंट्रोड्यूस हुई है. बेसिकली नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव. सो समटाइम्स व्हेन पीपल डोंट लाइक एनी ऑफ द कैंडिडेट्स एंड दे चूज टू सिलेक्ट नन, तो वो नोटा पे वोट करते हैं. बट नोटा का कोई वैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि इवन इफ नोटा जीत जाता है, लेट्स से कोई आपने वोट्स डाल दिए, मेजॉरिटी वोट्स चले गए नोटा को, तो भी कैंडिडेट कोई है नहीं वहां पे फिजिकली प्रेजेंट. So you can't select that emptiness to the seat. So इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है. उसमें क्या होता है कि जिसके सबसे ज्यादा सबसे पहले वोट्स हो गए वो जीत गया. वो नोटा नहीं हो सकता बिकॉज नोटा इज नॉट अ पर्सन. सो दैट इज वाई इट इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग कि हमने किसी के लिए वोट नहीं किया, बट इट बेसिकली हेल्प्स द पॉलिटिकल पार्टीज to get in better candidates, that the population tells them that we don't like whatever you're presenting to us as of now, and we don't like the selection that you have offered us. So that is why nota is very important that ways, but not practical importance as such as of now. Section 8 of the Representation of People Act 1951, it's a very important section. It deals with disqualification of the representatives. तो सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन कन्विक्टेड है इंडियन पीनल कोड के कुछ सर्टन एक्ट्स में, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 विच इज द SC/ST एक्ट एटसेट्रा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, पोटा एटसेट्रा, तो वो डिस्क्वालिफाइड है. अगर कन्विक्टेड पर्सन सेंटेंस टू ओनली फाइन है, अगर उसे कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं हुई, तो वो 6 years के लिए डिसबार्ड है टू कंटेस्ट एनी इलेक्शन. बट अगर उसे इम्प्रिजनमेंट हुई है तो जब वो रिलीज होगा आफ्टर द कन्विक्शन एंड इम्प्रिजनमेंट, द डेट ऑफ रिलीज पोस्ट दैट 6 years ही हैज टू वेट टू कंटेस्ट एनी इलेक्शन. सो लेट्स से अगर वो 2020 में कन्विक्ट हुआ, उसको जेल जाना पड़ता है, वो 1 साल जेल जाता है, तो प्लस उसको 6 साल और वेट करना पड़ेगा. यानी कि अब वो 2027 में नेक्स्ट इलेक्शन जो भी होगा या उसके बाद जब भी होगा तब वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है. सेक्शन 8 क्लॉज 2 सेज a person convicted for the contravention of any law providing for prevention of hoarding or profiteering, कि hoarding profiteering से रिलेटेड, adulteration of food drugs से रिलेटेड या डाउरी प्रोहिबिशन से रिलेटेड अगर कोई भी ऑफेंस किया है तो वो भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता. सेक्शन 8 क्लॉज 3 सेज कि कोई भी इम्प्रिजनमेंट है फॉर नॉट लेस देन 2 years, यानी कि
more than equal to 2 years अगर कोई conviction हुई है, imprisonment हुई है, apart from any offences in subsection 1 और subsection 2 जो ये आपके ये वाले acts और offences दिए, इनके अलावा कुछ है, so even then अगर उसकी more than 2 years की conviction है, तो he shall be disqualified and continue to be disqualified for 6 years since his release. So again, release अगर वो एक साल, सॉरी ये एक साल के लिए नहीं है, ये 2 और more than 2 है. Let's say 3 years की imprisonment थी, तो 3 years तो imprisonment वाले वो वैसे ही नहीं लड़ सकता. Plus 6 years after release उसको wait करना पड़ेगा. That means 9 years after the conviction, date of conviction, वो election contest कर पाएगा. There was earlier section 8 clause 4. वो क्या कहता था कि अगर लोअर कोर्ट ने कन्विक्शन कर दी है और वो करंटली मेंबर पार्लियामेंट या मेंबर लेजिस्लेचर है, तो उसको 3 months तक nothing can be done. So within 3 months, if he files an appeal in the higher court, तो क्या कर सकता है, जब तक dispose of नहीं होती वो appeal, there is no decision, he can continue to hold his position or contest any other election. But it was very controversial. Why was it controversial? Because आपने अगर कोई ऑफेंस किया है, आप लोअर कोर्ट की डिसीजन पे कन्विक्ट हो चुके हो, but still you're holding your seat because higher court has not given a decision, and we know in our country high court will not give a decision within 6 years. So this had to be deleted. So the Supreme Court said that it is ultra vires of the constitution and provided for the disqualification of MPs and MLAs from the date of their conviction. कि जिस दिन वो convict हो गया, even in the lower court, he is no longer going to hold the seat. So section 8 clause 4 was repealed, struck down from the RPA 1951. Another important section is section 123. इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, अभिराम सिंह केस. करता किससे डील है ये सेक्शन? करप्ट प्रैक्टिसेस से. 7 क्लॉजेस हैं इसमें, बट क्लॉज 3 is the point of contention, the point of discussion. Why? Because it says that section 123 clause 3 prohibits any candidate, his agent or person consented by the candidate or his agent from soliciting votes मांगने से, और discouraging voters for voting for a rival candidate. या तो अपने लिए वोट मांगना या राइवल कैंडिडेट को वोट ना देने के लिए कोई भी अगर वो बातचीत कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज, दैट इज अ करप्ट प्रैक्टिस. यू कांट डू इट. बट प्रॉब्लम कब आई? देयर दिस केस फ्रॉम 1990, अभिराम सिंह ऑफ बीजेपी, वो महाराष्ट्र स्टेट के इलेक्शंस लेजिस्लेटिव असेंबली के कंटेस्ट कर रहे थे. So there was a petition filed by some rival that he was asking for votes on the basis of Hindu religion. So now he couldn't have done this because, of course, prohibition hai already and it's called a corrupt practice mentioned in the act. तो एक 7 जज बेंच ने 2017 में ये जजमेंट दिया. मेजॉरिटी डिसीजन ऑफ 4:3 था. 3 were still against this judgment. 3 judges were against, but 4 were in favor. So that is why it's a majority judgment of the 7 judge bench that जो ये his है, his agent or person consented by the candidate or his agent, तो ये broad sense में इसको लेना है, and it is extended to the religious, social and linguistic identity of the voter also. यहाँ पे his का literal meaning आ रहा है कैंडिडेट का एजेंट. his एजेंट मतलब कैंडिडेट का एजेंट, और पर्सन कंसेंटेड बाय हिज एजेंट मतलब पर्सन कंसेंटेड बाय द कैंडिडेट्स एजेंट. सो वोटर का कहीं जिक्र ही नहीं है इस पूरे सिनेरियो में. और वोट्स मांगने का काम और डिस्करेज करने का वोटर का काम राइवल कैंडिडेट से कैंडिडेट या उसके एजेंट्स ही करते हैं यूजुअली. सो वो परव्यू में वोटर को कहीं लिया ही नहीं गया. बट इस बेंच को लगा कि ब्रॉडर सेंस में अगर हम इसको लेंगे, क्योंकि वोटर्स ऑल्सो can do those convincing powers people have,
क्योंकि बहुत सारे गाँव में या टाउन्स में एसोसिएशंस होती हैं, तो उनके जो लोकल लीडर्स होते हैं या जैसे कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कोई प्रेसिडेंट खुद से ही है, तो वो अगर इन्फ्लुएंस रखता है लोगों पे, even though he is a voter, he is not the agent of the candidate, and he is not, any person consented by the candidate. But वैसे ही अपने पर्सनल ओपिनियंस पे वो कुछ भी डायरेक्ट करने लग जाते हैं कि ये हमारे रिलीजन से है, सो लेट्स वोट फॉर हिम. So sometimes these cases can also arise. So they considered the broad sense. But of course, there was for and against in this judgment all through. So it had to become a very, very, criticized judgment also. So the basic criticisms that were there कि ये broad interpretation जो है ये literal interpretation of statute के basic principles को violate करती है. Broad interpretation में his में voter को भी माना गया है. But literally it means candidate and his agent, यानी कि candidate का agent. तो उसको basically it mars the original meaning. इसीलिए ये judgment criticize की जाती है थोड़ी सी. Also, it violates Article 19 because some people have argued कि candidate का right to freedom of speech है. वो कास्ट का रिलीजन और कम्युनिटी बेसिस पे भी वोट मांग सकता है या वो कन्विंस कर सकता है लोगों को कि वाई दे शुड नॉट वोट फॉर समबडी एल्स बेसिस रिलीजन, कि वो उसका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ही कैन डू दैट. तो आर्टिकल 19 का वायलेशन है, दैट हैज बीन सेड. Also, judicial activism is of course a very huge phenomena in our country. So the judiciary has blurred the separation of power, क्योंकि जो elections है और उनके processes है वो functions of the government है. The judiciary is not to interfere in the functions of the government. That is the separation of power and the beauty of separation of power. But judiciary is overlapping, so this is another criticism. Also, the judgment is very vaguely worded. So this is a huge problem. कि vaguely worded है, clarity नहीं है, और judges ये समझ नहीं पाए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि dirty politics में और legitimate issue of some community में अगर किसी community को कोई particular problem है और कोई candidate उनकी problem समझ के उनको solve करने का वादा कर रहा है या उन्हें विश्वास दिलवा रहा है, तो वो dirty politics नहीं है. It is actually a genuine problem. तो वो ये judgment consider नहीं कर रहा है कि that is also a possible case. So there is a difference between undesirable and dirty political speech and actual legitimate issues of some community. Also, the hard-hitting fact, the sad reality कि इंडिया ने कभी भी separation of religion and politics in the practical scenario आज तक नहीं देखा. In the 7 decades of independence, we have never seen that religion and politics have been treated separately. So this has been criticized as being an unpractical judgment also at times. But of course, the decision has been taken, and in 2017, it was a turning point, which included the voter as well in the whole scenario. And Abhiram Singh became a landmark judgment since then. So this is what we had to discuss in the Representation of the People Act 1950 and 51 for this video. Thank you so much, guys, and please like, comment, and share, and subscribe to the channel and follow us for more relevant content. Thank you and bye bye.